تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سامعین اکرام، جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس بچی کا جو علاج ہے مسلسل 5-6 مہینوں سے چل رہا ہے۔ یہ بچی 12 پاروں کی حافظہ ہے، عالمہ بننا چاہتی ہے اور یتیم ہے۔ اس بچی کے آپریشن میں 18-19 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، جو آپ لوگوں نے تعاون دیا، جو بیچ میں ہم نے ڈونیشن بند کر دیا تھا، اور یہ سوچ کے کہ اس بچی کا آپریشن ہو گیا، اب کوئی دقت پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کا دوبارہ سے ڈونیشن چالو کیا گیا کیونکہ اس بچی کو ٹیومر کے ساتھ ساتھ کینسر کی گانٹھیں بھی پائی گئی، جس کی کیمو تھیراپی چل رہی ہے، جو 6 مہینے تک چلنی ہے۔ 6 مہینے تک مسلسل کیمو تھیراپی چل رہی ہے، اور ایک کیمو تھیراپی کی جو قیمت ہے وہ 27,680 روپے ہے، اور مہینے میں 2 کیمو تھیراپی ہونی ہے۔ 3 سال تک اس کی مسلسل میڈیسن چلنی ہے، اور ہم لوگوں کو مل جل کر اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے، علاج کرانا ہے۔ جس بھائی کو جانکاری پوری چاہیے وہ مجھے اسی نمبر پہ، جو نمبر دیا گیا ہے اسکرین پر، کال کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس بچی کی پوزیشن یہ ہے کہ کیمو تھیراپی کی وجہ سے اس بچی کے بال سب جھڑ گئے ہیں، اور مسلسل علاج چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اسکینر دیا جا رہا ہے، جو جائز کمائی ہو میرے سنی بھائی آگے آئیں اور اس بچی کو تعاون کریں۔ ابھی اس بچی کی جو لیٹسٹ فوٹو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس کے بال سب جھڑ گئے ہیں۔ تو ابھی کتنا علاج میں خرچہ ہوگا، کیا ہوگا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن آپ لوگ ڈونیشن کرو۔ رقم جیسے ہی پوری ہو جائے گی ڈونیشن بند کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنی محنت کی کمائی سے اپنا صدقہ، زکوٰۃ سب کچھ آپ دے سکتے ہیں اس بچی کے لیے، اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ ریکارڈنگ شروع کرتا ہوں۔ قبر پجاری بات کرو گے؟ قبر پجاری پہ بات کرو گے؟ قبر پجاری پہ بات کرو گے؟ قبر پجاری بات کرو گے؟ چلو ابھی کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے والا قبر پجاری وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم زبانی جمع خرچی کرو گے، مگر کچھ اصول شرائط ہوں گے۔ جو بھی آپ دعویٰ پیش کرو گے، اس دعوے سے پہلے میرے پاس دلیل بھیجو گے میری اوریجنل کتاب کی، اور 2 منٹ آپ بولو گے، 2 منٹ میں بولوں گا، اور قبر پجاری پر بات ہوگی۔ آج یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ قبر پجاری کون ہے۔ موجود سامنے حضرات دیکھیے، دیوبندی کو آج میں قبر پجاری ثابت کروں گا، اس کے سارے اکابروں کو قبر پجاری ثابت کروں گا۔ تمہارے سارے اکابر تم تو کرتے ہو، پوجاری کرتے، پوجا کرتے رہو، وہ ثابت ہو جائے گا بھی کون قبر پجاری۔ ایسے زبانی جمع خرچی نہیں کروں گا میں تمہارے گھر کی کتابوں سے تمہیں قبر پجاری ثابت کروں گا آج۔ جاہل صاحب، ارے جاہل صاحب سنو، تم پکے جاہل ہو، اجہل ہو، بلکہ تمہارے جو تھانوی نے کہا تھا کہ میں جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل ہوں، وہ تم ہو۔ وہ تو کیا کہتے ہیں، اپنی تعریف کرنا حوالہ دوں تمہارے تھانوی نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں جاہل ہی نہیں بلکہ اجہل ہوں۔ اور تمہارے احمد رضا خان نے اقرار کیا کہ میں رضی اللہ عنہ اور میں رسول اللہ ہوں۔ یہ حوالہ پیش کرو، میں حوالہ تمہارے تھانوی کا پیش کرتا ہوں، تو میرا اکابر کا پیش کر دو۔ اگر تمہارے اندر دم ہے، بازو میں دم ہے، تو حوالہ پیش کرو۔ میں سنو، اگر سچی ہو تو حوالہ، سچی ہو تو دلیل لاؤ۔ سنو میں حوالہ دے رہا ہوں۔ تم یہ کہو کہ تمہیں یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہے، اگر لکھا ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق، تم یہ کہہ دو۔ چلو ایسا ہے جاہل صاحب، بیدال کے بودم غدا اللذیذ، پہلے میرے پاس حوالہ بھیجو اور اس پر پھر دعویٰ پیش کرو، حکم لگاؤ کہ ایسا لکھنے والے پر کیا حکم لگے گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کتاب کس کی ہے اور کس نے لکھا ہے۔ وہ ادھر آؤ ذرا، تم پہلے اگر دم ہے تو جیسے میں نے حکم لگایا تھا کہ تمہارے اکابر جو ہیں وہ قادیانی ہیں اور قادیانی کو مسلمان مانتے ہیں، اور میں نے حکم بھی لگایا تھا، اس طریقے سے تم حکم لگاؤ، دعویٰ پیش کرو اپنا، اگر ہمت ہے تو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے تم کر رہے ہو۔ اب تم نے ابھی قبر پجاری کہا تھا، اب قبر پجاری مجھ سے بات کرو گے؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں تمہارے گھر کے قبر پجاری دکھاتا ہوں، تمہارے گھر کے قبر پجاری دکھاتا ہوں۔ سب سے بڑا قبر پجاری تمہارا تھانوی تھا، تمہارا تھانوی بہت بڑا قبر پجاری تھا۔ چھوڑ دو، تم اب کر رہے ہو چشتی رسول اللہ کو پہلے ثابت کر دو۔ چلو کیا؟ ارے اس کا حکم لگا دو نا، چشتی رسول اللہ پڑھے، کیا حکم اس کا؟ حوالہ بھیجو پہلے مجھے۔ تم ابھی میں نے کہا نا تم سے، تم بھاگ رہے، میں نے کہا نا اگر میں نے حوالہ نہ بھیجا ہو یا تم یہ کہ تمہاری کتاب میں نہ لکھا ہو، میرے پاس کوئی حوالہ نہیں آتا۔ اچھا یہ بات بتلاؤ، کیا تم نے جیسے میں نے تمہارے پاس تمہاری کتابوں کا حوالے بھیجے، ایسا کوئی حوالہ بھیجا میرے پاس؟ میرے یہاں نیٹ نہیں چل رہا بھائی۔ میں آپ کو جھوٹ کے بول رہا ہوں، تو پھر جھوٹ کے بول رہا ہوں، جھوٹ کے بول رہا ہوں۔ بیوی کو تمہاری طلاق ہوگی؟ اچھا مجھے طلاق کی شرط کیوں رکھ رہے ہو تم صاحب؟ مجھے کیا سمجھ کے رکھ رہے ہو تم طلاق کی شرط؟
और ये नहीं बताओ। भाई, मैंने ये कहा है कि अगर तुम्हारी किताब में ना लिखा हो, तुम ये कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह मेरी किताब नहीं, में तुमने नहीं अभी लिखा जो ये है। कहा कि अब मेरी बीवी को तलाक होगी, तो आप मुझे क्या समझ के तलाक की शर्त लगा रहे हो? हैं? हाँ, क्या समझ के? मैं तलाक तो तुम्हारी मुसलमानों में होती है। तुम्हारी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम अपनी बीवी के बारे में कहो। ऐसे मैं तुम कह रहा हूँ, कहो ये तो पूछ रहा हूँ मैं तुमसे मौलाना, कि तलाक तो मुसलमानों में होती है। नहीं, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं तुम लगाओ ना भाई। अभी अभी आपने कहा नहीं है कि अगर मैंने हवाला नहीं दिया तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक, तुम इस बात का इकरार करो, मुझसे कहला रहे नहीं अरे अभी। जाहिल तो मुझे ये फकीर, एक बताओ बात कि तुम अपनी तलाक कान, तो मुसलमानों अरे में होता है। जाहिल जो है देवबंदी वो साहब, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम बात किससे कर रहे हो। तुम्हारी दुबुर में ना बरेली का बांस ऐसा डालूंगा कि मुंह तक निकाल दूंगा। तुमने मुझे मुसलमान समझा नहीं, क्योंकि तलाक जो होती है मुसलमानों में होती है। जवाब दीजिए देवबंदी साहब, जवाब दिए हैं, मत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ। अरे बेटा, यहाँ क्या कहता मुझे है, ना करोगे तुम्हारी मुजरा, बात सुन के पता चल रहा है कि मुजरा तुम करोगे अब मुजरा। भटक गए हो। तुमने मुझे मुसलमान समझा, तभी तो ये कहा कि अगर मैंने हवाला नहीं भेजा तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक हो जाएगी, क्योंकि तलाक जो होती है वो मुसलमानों में होती है। तुम्हारे मुताबिक भाई, तुम्हारे मुताबिक, हैं? तुम्हारे मुताबिक तो तुमने इकरार क्यों किया इस बात का? मेरे मुताबिक है तो तुम, इसका मतलब मेरे मजहब को, मेरे 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 अरे मेरे अरे मसला को अरे मानते हो तुम? अरे भाई, मेरी जमात को मानते हो? तुम खुद को हैं? मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो? हम तो मुसलमान है। खुद को मानते हो ना? तुमने तो तुमने मुसलमान माना ना मुझे, तभी तो इस शर्त रखी। अरे मुझे वो बात छोड़ दो ना, मैं तो आपके नहीं, मुताबिक आपको तुम छोड़ कैसे दो? अरे तुमने मुझे मुसलमान माना तभी तो ये शर्त रखी। अरे तुम तो बिल्कुल जाहिल लिख रहे, कसम से जाहिल मुझे तुम लग रहे हो, जाहिल मुझे तुम लग रहे हो। अगर मैं किसी अरे कादियानी से बेवकूफ, मुनाजरा करूंगा, अरे मैंने जाहिल जो बात आदमी, बोली अगर मैं किसी कादियानी से अपने मुनाजरा मकसद को करूंगा, सुनो मद्देनजर हुए शब्द सुनो सुनो, रखो। अगर मैं किसी कादियानी से मुनाजरा करूंगा और मैं उससे ही कहने लगूं कि अगर मैंने ये हवाला तुझे पेश कर दिया तो तेरी बीवी पे, तू क्या इस बात को कि तेरी बीवी पे 3 तलाक होगी, तो वो मुझसे ये भी तो कह सकता है कि तुम मुझे मुसलमान मानना है। तो तुमने मुझे मुसलमान माना तभी तो शर्त लगाई मुझसे, क्या कादियानी से ऐसी कहोगे तुम? ये गलत बात है। मैं आपको क्यों? मैंने जो ये कहा ना कि मुसलमान मानना ना मानने की बात, मैंने ये कही है कि तुम अपने मुताबिक खुद को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते हो, इसमें भी शक है आपको। तुमने ये कहा कि तुम अपने मुताबिक, तुमने ये कहा कि अगर मैंने हवाला भेज दिया तो तुम्हारी बीवी को 3 तलाक हो जाएगी, ये कहो तुम। इसमें नहीं समझ में आता है। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम ताहिर रजा कादरी से बात कर रहे हो, तुम अभी बच्चे हो, समझे ना? हाँ, अभी लल्ला हो तुम, अभी बेटे तुमने दूध छोड़ा है। अभी मुझे ऐसा लगा अभी अभी वही पीने हो, बोनी पी रहे हो, बोनी अम्मी की, अभी अम्मी की बोनी पी रहे हो। ये अरे तुम्हारा टकराना तो देख लिया मैंने, तुम बड़बड़ किए जा रहे हो, बड़बड़ किए जा रहे हो। अभी तक तुमने कोई हवाला मुझे नहीं दिया, जुबानी जमा खर्ची किए जा रहे हो, और मैं हर हवाला तुम्हें पेश कर रहा हूँ। देखिए अभी ये देखिए बड़ा देवबंदी से टकराओगे। देवबंद हर जमाने में अनमोल रहा है। देवबंद के 4 अकाबिर पक्के काफिर हैं और उन्हें हम काफिर मानते हैं, और ये हम काफिर मानते थे, काफिर मानते हैं, और सुबह कयामत तक काफिर मानते रहेंगे। और तुम उन्हें इस्लाम में दाखिल करके दिखला दो और तुम मुसलमान साबित करके दिखला दो। अभी तो तुम्हारे सामने तुम्हारे कई काफिर, तुमने ताहिर गया अभी तक को काफिर कुफर का घाट उतार दिया। तुमने ये कह दिया कि ऐसा लिखने वाला जो काफिर है। तुम सब सुन रहे हो, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहने वाले को तुमने क्या कहा? बिल्कुल, आप मैंने ये कहा कि जो ऐसा अकीदा रखा है वो काफिर है, मगर हवाला तो पेश करो मुझे, मैं फिर तुम्हें दिखाऊंगा वो किताब किसकी लिखी हुई है। अब तुम भाग रहे हो ना। मैंने अरे मैं दिखाऊंगा तुम्हें वो किताब किसकी लिखी हुई है, ये जो दिखाऊंगा मैं, किताब तुम्हारी है वो, मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा वो किताब तुम्हारी है। ये लीजिए, ऐसा नहीं होता जमानी जमा खर्ची। अरे जाहिल साहब, जमानी जमा खर्ची नहीं होती। मैं तुम्हारे घर से साबित करूंगा कि वो किताब तुम्हारी है, तुम्हारे घर के हवाले से साबित करूंगा वो किताब तुम्हारी है, और उसमें तुम्हारे थानवीन ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पर तावील की है कि इसको ये माना जाएगा कि इसे तुमने पढ़ा है? हाँ, मैं भेजू हवाला भेजूं? अरे हवाला भेजूं? अरे नहीं सर, तुम्हारे थानवी का, मैंने मान लिया, तुम्हारे थानवी का मान लिया, थानवी का मान लिया। हम तो ऐसा अकीदा रखने वाले को काफिर मानते हैं, मगर तुम्हारे कुफर के घाट तुम्हारा थानवी उतर रहा है तुम्हारे फतवे से, क्योंकि थानवी कह रहा है कि ऐसा कलमा पढ़ने वाले की काबिल की जाएगी कि ये नबी का गुलाम है। तो तुम्हारे फतवे कौन काफिर हुआ? और मेरे फतवे से भी तुम्हारा थानवी काफिर हो रहा, क्योंकि हम ऐसा अकीदा रखते हैं। तुम्हारा थानवी काबिल की है, तुम्हारा थानवी हिमायत कर रहा है उसका, और तुम्हारे थानवी ने अपने मुरीद से कलमा पढ़वाया, और कलमा के बाद में दरूद शरीफ पढ़वाया, और फिर उससे कह रहा है कि जिसकी तरफ तुम रुजू कर रहे हो वो तुम्हारा पीर मुत्तबे सुन्नत है, रिसाला अल इमदाद मैंने तुम्हारे पास भेज दिया, तुम्हारे घर की किताब, जाहिल साहब पढ़ लो उसे। एक मिनट, झूठ मत बोलो, दोबारा से बोलो, झूठ दोबारा से बोलो। तुम्हारे थानवी के मुरीद ने ख्वाब में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ा। अच्छा, अब वो ख्वाब से बेदार हुआ, अब बेदार है तो हालत बेदारी में अब दरूद पाक पढ़ रहा है, तो फिर भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ रहा है। अब आप यहाँ पर दजल कर रहे हैं, दजल। वो कह रहे हैं पढ़ के सुना दूंगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तुम सुना दो पढ़ के सुना दो। अरे सुनो, मेरे सामने है वो इजबार में, वो कह रहा था कि मैं निकालना चाह रहा हूँ ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझसे निकल रहा है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह से रसूलुल्लाह जबरदस्ती निकल रहा है। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ख्वाब की बात है। लेकिन बेदारी में वो दरूद शरीफ जो पढ़ रहा था, दरूद शरीफ अशरफ अली रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, जानबूझ के पढ़ रहा था। है
जानबूझ के पढ़ रहा है। अब मुझे ये बतला दो कि वो किस तरह से पढ़ रहा था, आप खुलासा कर दो इसका, चलो आप बता दो, वजाहत कर नहीं, दो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जो अगर चलो आप इसकी वजाहत कर दो, इसी की वजाहत कर दो कि वो कैसे पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था वो। अगर कोई अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो ना मेरी बात सुनो। तुम सिर्फ इतना बता दो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पर तुम अपना हुक्म बता दो। तुम्हारा देखिए हुक्म क्या सामने है? हजरात, अब सामने हजरात देखिए, इसके घर की बात आई तो आप इधर भागना। मैं कह रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह जिस किताब में लिखा हुआ है वो किताब तुम्हारी है। बता दो। अरे बेटे सांस तो ले लो, सांस तो ले लो, सांस तो लो, सांस तो लिया करो यार। अरे जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह जिस किताब में लिखा हुआ है वो मैं तुम्हारे घर की साबित करूंगा, और तुम्हारे अशरफ थानवी का जो रिसाला अल इमदाद है उसमें जो कलमा पढ़वाया है और फिर दरूद शरीफ पढ़ा उसने हालत बेदारी में, तो उसे तुम वजाहत करो कि वो कैसे पढ़ा था उसने, वजाहत करो। मैंने तुम्हारे पास हवाला भेज दिया है, रिसाला अल इमदाद तुम्हारे पास है, मैंने भेज दिया है, उसमें पढ़ के सुनाओ, तुम पढ़ के सुनाओ, उसने जान पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। मैं पढ़ रहा था, तुमने सुना कहाँ, पढ़ने नहीं दिया तुमने, पढ़ के सुनाओ। चलो वो ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं मैं पढ़ना चाह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें क्या कहते हैं बेदारी में भी उनसे जबरदस्ती निकल रहा था, बेदारी में भी। इस बार पे क्या हुक्म लगाओगे तुम, इस बार क्या होगे इस बार है ये है? अरे अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें मौलवी जो बनाया जाता है तो सनद वैसी मिल जाती है तुम्हें, या मतलब कुछ इल्म सिखाया जाता? तुम्हें ये सिखाया जाता है कि भाई कब्र से मांगो, देवबंदियों के कर खिलाफ लो नहीं बोलो, इसे कर लो। अच्छा कब्र से मांगने वाले पे क्या हुक्म लगेगा? चलो चलो कब्र से मांगने वाले पे क्या हुक्म लगेगा? चलो लगा हुक्म क्या लगेगा? अरे किसी बात तो कर लो, किसी बात तो कर लो, कब्र से मांगने वाले पर हुक्म क्या लगेगा जो कब्र से मांगे? सुनो, कब्र से तुम मांगते हो कि नहीं मांगते ये बता दो बस मुझे ये बताओ जो कब्र से मांगे उस पर हुक्म क्या लगेगा? और देखो सुनो 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 सुनो, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। देखो कहाँ भागेगा देवबंदी, सामान्य हजरात सुन रहे हैं, अभी कहाँ भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो भी दावा पेश करोगे हवाला पहले देते जो मांगे उस पर हुक्म लगाओ, तो शरीफ का हुक्म क्या लगेगा? भागने लगा, देखो अब भागा, इधर भागेगा, अब इधर भागेगा। कभी देवबंदी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, बंदर की तरह गुलाटी ले रहा है, मगर चैन की तरफ नहीं मिल रही है। छोड़ करके तुम चाह रहे हो छोड़ करके वहाँ कब्र पे बात करना शुरू कर दो। अब ये बतलाओ रिसाला अल इमदाद में जो उसने दरूद शरीफ पढ़वाया हालत बेदारी में, उस पर क्या हुक्म लगेगा? मैं कह रहा हूँ तुम अच्छा चलो सुनो, मैं अभी तो तुम्हारे मसले से और तुम्हारे फतवे से साबित हो जाएगा। तुम बोल दो ना भाई ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पे ये हुक्म है, तुम बोल दो ना। पहले हवाला पेश करो मेरे पास, मैं तुम्हें रिसाला अल इमदाद का हवाला पेश कर दिया, ऐसी मुझे पेश कर दो तुम मेरी किताब का, मैं साबित करूंगा कि वो तुम्हारे घर की किताब है, वो तुम्हारे घर की किताब है और तुम्हारे थानवी ने उसकी तावील की है, तुम्हारे थानवी ने तावील की है उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। मेरे किसी अकाबिर की आप तावील दिखा दे और मेरे किसी अकाबिर का ये दिखा दे कौन के मुझसे सही है। उसका एहसान मानो। तुम्हारा थानवी सही बता रहा है उसे कि सही पढ़ा ये, तो तुम्हारा थानवी काफी है, मेरे फतवे से भी तुम्हारे फतवे से भी। नहीं तुम बताओ पहले पढ़ने वाला क्या है। ये जाहिल आदमी, जब जाहिल होगा कुछ मैं फिर कहूंगा तो कहोगे यार ऐसी बात करना है। अब तुम जाहिल हो या कुछ इल्म सीखा? अरे बेवकूफ आदमी, हमारे किसी अकाबिर ने ये कहा है कि वो जाहिल, वो सही कहा है। तुम जाहिल हो, बेवकूफ अजल। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं ये पढ़ने वाले पर दिखाना पड़ेगा कि मेरे किसी अकाबिर ने जायज लिखा है इसे, और मैं तुम्हारे घर का दिखाऊंगा तुम्हारे थानवी ने जायज लिखा है, उसकी ताबीर की है। सर सुनना, हनीफ कुरैशी पाकिस्तान के मुनाजिर हैं, उन्होंने इसमें मुनाजरा क्या साबित किया है कि पढ़ना सही है। यहाँ पेश करो, यहाँ पेश करो, यहाँ हवाला पेश करो। क्या हवाला? ये जबानी जमा खर्ची नहीं करती है जो अगर मुंह उठा के ना कि मुनाजरा करने जा रही हूँ, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए था कि मुनाजरा किससे करने जा रहा हूँ, मुसलमान से। तुम बातिल हो और एक हफ्ता लड़ने के लिए जा रहे हो, तो ये के चलते। अरे मैं कह तो रहा हूँ बेवकूफ आदमी, जब जाहिल हो, मैं कह रहा हूँ चिश्ती रसूलुल्लाह कहा उसने तो मेरे किसी अकाबिर ने उसे कहा कि जायज है, तुम झूठ बोलो। हनीफ कुरैशी का मुनाजरा भी हमने देखा हुआ तो तालिब रहमान से होता, उसमें कहीं नहीं कहा उन्होंने कि जायज है, ये कहीं नहीं कहा उन्होंने, तुम झूठ बोल रहे हो। तालिब रहमान से मुनाजरा होता तो हमने देखा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हो। अब कितना झूठ बोलोगे तुम देवबंदी हो, तुम्हारे धर्म की बुनियादी झूठ पर है। अगर तुम कह दो कि मेरी बीवी को तलाक है और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मान लूंगा, कसम से मान किस लूंगा। बुनियाद पर कहूँ मैं, क्या मानते हो तुम मुझे तलाक होगी, किस बुनियाद पर? क्या मुसलमान मानते हो मुझे? मुसलमान मानते हो? अब तुम तो क्या कहते हैं वो उस बात है, मैं तुमको तुम्हारे अकीदे के मुताबिक बात कर रहा हूँ, तुम मुझे लग रहा है तुम मुझे मुसलमान मानते हो। मैंने तो अभी तुमसे नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी को तलाक होगी, क्योंकि मैं तुम्हें काफिर मानता हूँ, मैं तुम्हें काफिर मानता हूँ। मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी को तलाक हो जाएगी, तुमने मुझे बार बार कह दिया ये अल्फाज, तो मुझे मुसलमान मानती तो कह रहा हो ना। कौन? तुम। अरे भाई मैं कह रहा हूँ तुम अपना अकीदे के मुताबिक। अरे भाई नहीं हूँ मैं, अरे भाई नहीं हूँ मैं, शेर हूँ, शेर रज़ा। मुझे बताओ कि तुमने अभी मुझसे ये कहा कि तुम्हारी बीवी को तलाक हो जाएगी तो तुमने मुझे मुसलमान माना, मैं तो तुम्हें काफिर मानता हूँ। मैंने तुमसे शर्त लगाई नहीं है अभी तक। मुझे कल्ब रज़ा रखना चाहिए, नाम तो वो पदार्थ तो कल्ब होता है, शेर तो मुश्किल है, कल्ब रज़ा होना चाहिए। तुम जो है काफिर हो, मैं तुम्हें काफिर मानता हूँ, इसलिए मैं शर्त नहीं लगाई। तुम हर बात में फंस रहे हो अपनी, और तुमने मुझसे कहा तलाक के लिए, तो तुम मुझे मुसलमान मानना हो ना। तुम्हारे और बाकी का फैसला यही हो गया। देखिए हक अल्लाह ताला जुबान से निकलवा ही देता, तुमने मुझे मुसलमान मान लिया।
अब तुम ये कहने में तुम्हें दिक्कत, तुम्हारी बीवी हाथ से जा रही है, तुम कहोगे नहीं, क्योंकि लोगों सबके सामने आ जाएगी कि बात अब ऐसे ही झूठ बोल तुम रहे इजहार करो इस बात का, तुमने क्या मान कर कहा मुझे ये? भाई तुम अपने अकीदे के मुताबिक क्या हो, कल्बुर रजा क्या हो तुम अपने अकीदे के मुताबिक? मेरे अकीदे को मानते हो तुम? नहीं, तुम्हारे अकीदे को तुम्हारे मेरे अकीदे को मानते हो तुम? तुम्हारे हक में मानता हूँ। मेरा अकीदा तुम मानते हो नहीं, मेरे हक से तुम्हें क्या मतलब है? मैं अपने हक का खुद मालिक हूँ, तुम अपने हक का खुद मालिक हो। तुम क्या मानते हो मेरे अकीदे को? मेरे अकीदे को मानते हो तुम? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक तुम सामने हजरात ने सुन लिया, ये होती जहालत देवबंदियों की। देखिए जाहिल की देखो इसकी। अरे मेरे अकीदे को आप मानते हैं? मेरे अकीदे को आप मानते हैं? जो मेरा अकीदा वो आपका अकीदा है, मानते हैं? तुम्हारे हक में है? मेरे हक के तुम मालिक हो। हर आदमी अपने अपने अकीदे का खुद मालिक है, अपने अपने अकीदे का खुद मालिक है। तुम मेरे मालिक हो? नहीं, मैं तो मालिक नहीं हूँ तुम्हारे। तो फिर अपने मुझे मानोगे? मेरा अकीदा मानना हो? अरे भाई तुम्हारे हक में तुम्हारा अकीदा है कि नहीं? तुम बोलो, मुझे लग रहा है तुम अपने। अरे मुझे तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुमने जो ये शर्त लगाई मुझे, जो तलाक वाली बात आप बार बार कह रहे हो, तो ये तुमने मुझे क्या समझ कर कहा इस बात को? मैंने इसलिए समझ के कहा कि तुमने निकाह किया है, तुमने अपने मुताबिक वो निकाह किया है, तुम अपनी बीवी को अगर तलाक दोगे तो तलाक पड़ जाएगी तुम्हारे मुताबिक। नहीं, मुसलमान माना नहीं मुझे, ये तो मेरे मुताबिक मानना। तो मेरा अकीदा मानोगे? अगर मेरे देखिए सामने हजरात, अब ये मेरे मुताबिक मानना है तो मेरा अकीदा मानना है ये। अब मेरा अकीदा ये है कि अशरफ अली थानवी लानती बदतरीन काफिर है, रशीद अहमद गंगोई बदतरीन काफिर है, कासिम नानोसी भी बदतरीन काफिर है, और खलील अहमद अंधेटी भी बदतरीन काफिर है। ये अकीदा मानो मेरा। अब तुम मेरा अकीदा मानना हो तो कहो इसका इकरार। ये तो तुम्हारा अकीदा हमारा कादिर के बारे में, तुम्हारे बारे अभी तुमने कहा कि तुम्हारा, अभी तो कह रहे हो तुम कि तुम्हारा अकीदा है, तो मेरा अकीदा जो मानना है हो तुम, तो मेरी अकीदे को मानो। तुम्हारा अकीदा तुम्हारे हक सामने हजरात आप सुन रहे हैं, ये फैसला हो गया आज। इन्होंने हक को मान लिया, इन्होंने मान लिया कि मेरा निकाह होता है। हाँ, ये मैंने इनसे शर्त नहीं लगाई तभी इन्होंने ये मान लिया कि मेरा निकाह होता है, और इन्हें ये मालूम है, इन्हें ये मालूम है कि इनका निकाह नहीं होता है। इन्हें मालूम है, ये जानते हैं कि इनका निकाह नहीं होता। मुझे इसका इकरार कर चुके हैं कई मरतबा, होता है, यहूदियों का निकाह होता है, कई मरतबा। यहूदी का निकाह मानते हो तुम? उनका आपस में। अरे भाई तुमने शरीयत में कोई मकाम है यहूदी के निकाह का? तुम्हारी शरीयत में मकाम है? तुम्हारे पास कोई शरीयत ऐसी जो यहूदी का मकाम दिया हो निकाह का? अगर दोनों अहले किताब एक साथ। अरे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हल कायनात में शरीयत मोहम्मदी की बात कर रहा हूँ। शरीयत मोहम्मदी में तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा मसला है जो यहूदी के निकाह को उसमें माना हो तुम्हारी शरीयत में? हाँ, अब सुनो, अब तुम्हारी जहालत आ जाएगी सामने। हाँ बोलो। अगर मसला बताओ, इमाम अबू हनीफा यहाँ, इमाम अबू हनीफा को मानते हो नहीं मानते? अहमद रजा का इमाम साहब से बड़े हैं। कौन? इमाम तो अबू मानते हो कि नहीं? तुम मानते हो इमाम आजम अबू हनीफा को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ। तुम कैसे मानते हो? तुम्हारा तो अहले सुन्नत वल जमात से कोई मतलब ही नहीं है। तुम तो वहाबी हो। एक मिनट के लिए तुम तो वहाबी हो। अरे तुम तो वहाबी हो, तुम वहाबी हो। वो तुम्हारे कहने से नहीं होगा, तुम्हारे कहने से नहीं साबित करूंगा, साबित करूंगा। कि तुम्हारे साबित करने से भी नहीं होगा। क्यों? मतलब अपने अपने काबिलों की बात नहीं मानोगे? तुम्हारा अशरफ अली थानवी खुद इकरार कर रहा है कि हम तो वहाबी हैं, तो थानवी की बात नहीं मानोगे? अगर सुनो, अगर कब्र को ढहाना, अगर कब्र पे अगर कब्र थानवी तुम्हारा खुद इकरार कर रहा है कि मैं वहाबी हूँ, तो थानवी की बात नहीं मानोगे? अब मानो तो थानवी के लाभ। सुनो, अगर थानवी के लाभ सामने होगा, सुन लीजिए। अभी इन्होंने ये कहा कि मैं वहाबी नहीं हूँ, तो थानवी अपने आप को वहाबी कह रहा है, उसे मानोगे? नहीं मानोगे थानवी को? तुम्हारा रशीद अहमद गंगोई कह रहा है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वालों को वहाबी कहा जाता है, तो और उसके अकायद उम्दा थे। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को तुम्हारा रशीद अहमद गंगोई मानना है, तुम मानोगे? सुनो ना, अब सुन लो, इनकी बात नहीं मानोगे? नहीं मानोगे अपने किसी अकाबिर की बात। देवबंदी जब फंसता है, नहीं जब फंसता है तो अपने अकाबिरों को लात मार के भागता है। और रही बात कब्र से मांगने की, तो कब्र से तुम्हारे थानवी ने मांगा है, कब्र से तुम्हारे थानवी ने मांगा है। किताब का हवाला देता हूँ, थानवी ने कब्रों से मांगा है। तो सुनो, जाहिल मुशरिक, सुन, कब्र से मांगता है जो। अगर वहाँ पे इसका नाम है कि भाई कब्रों से मत मांगो, वहाँ पे इसका नाम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती मत पढ़ो, तो फिर सुनो, मैं भी वहाँ भी हूँ, ठीक है? अब सुन लो, अब सुन लो। अभी तुमने एक अल्फाज कहा, मुझे मुशरिक भी कहा, मुझे कब्र पुजारी भी कहा। अब तुम शिर्क की तारीफ कर दो जरा। शिर्क की तारीफ कर दो, क्या है? तुम तो अकीदे की तारीफ ना कर सके, तुम शिर्क की तारीफ करवाओगे मुझे? मुझे जरूरत ही नहीं थी जो मैं अकीदे की तारीफ करता, जरूरत नहीं किया हूँ। आप तुमने मुशरिक कहा ना मुझे। अगर तुम्हारी जुर्रियत में दम है तो यहाँ से लेके भोपाल तक, भोपाल से लेके और तुम्हारे रायबंद तक मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई देवबंदी शिर्क की तारीफ कर दे तो मुंह मांगे नाम दूंगा। कर दो शिर्क की तारीफ। अगर तुम ये कहो कि अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो, मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। देखिए सामने कि मौलवी है। अब आप सुन ले खुद, ये मौलवी है, नाजायज बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं, तो ये मौलवी है। अगर तुम शिर्क की तारीफ कर दो आज, तो तुम्हारी पूरी जुर्रियत को शिर्क के घाट अगर मैंने नहीं उतार दिया है, तो मेरा नाम ताहिर रज़ा कादरी नहीं है।
बेटे तू आंसू जरा की तरफ, तेरी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा, तेरी नानी दिला दूंगा आज मैं। ऐसे ऐसे कहने से नहीं होगा। अच्छी तारीफ कर, कर तारीफ सिरकी की तारीफ कर, सिरकी की तारीफ कर। अभी तेरे काबिलों को सबको कुफर के घाट करूंगा और सिरके घाट करूंगा। सुनो ना, कर सिरकी की तारीफ, भागो मत, सुनो ना यार। सिरकी की तारीफ कर, सिरकी की तारीफ, भाभी सिरकी की तारीफ कर रहा हूँ, सुन लो, कर सुन लो। तुम्हारे तुम्हें क्या लगता है कि सिर की तारीफ सिरकी की तारीफ कर भाभी, और हमें कब्र पुजारी साबित कर और कब्र से मांगना साबित कर। सिरकी की तारीफ कर, मांगते हो नहीं मांगते हो बोलो। सिरकी की तारीफ कर। मेरी किसी किताब में लिखा हुआ दिखा, मेरी किसी किताब में लिखा हुआ दिखा, उसका हवाला लगा कि कब्र से मांगना, मेरे किसी अकाबिर ने कब्र वालों से मांगना जो है डायरेक्ट में उनसे मांगना, उन्हें ये समझ के मांगना जो है जायज है। साबित कर। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि जायज नहीं, लेकिन मांगते क्यों हो? मान लिया, देखिए सामने से मान लिया। अब कब्र से मांगना। अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक में लिखा है, इमदादुल मुश्ताक में, कि मेरे पीर का एक जुलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल उनकी कब्र पे पहुंचा और जाकर कहा कि हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, रोटियों का मोहताज हूँ, कुछ दस्तगिरी फरमाइए। तो कब्र से आवाज आई कि तुमको हमारी पार्टी से रोज 1.5 आना या 2 आना मिला करेंगे। तो एक दिन मैं भी जाकर के मजार को गया था, तो देखा तो वो शख्स भी मौजूद था। तो कुल कैफियत बयान करके उसने मुझसे कहा कि मुझे रोजाना दुआने 35 से मिला करता है। तो तुम्हारे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी कब्र से बोल भी रहे थे, उसे दुआने देते थे और उसने कब्र से मांगा भी, क्या कहा मेरी दस्तगिरी फरमाई। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मकी का वाकया है ये। और तुम्हारे थानवी खुद अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक में इसमें लिख रहे हैं, तुम्हारा थानवी पक्का कब्र पुजारी और पक्का कब्र से मांगने वाला, और तुम्हारे फतवे से काफिर और मुशरिक हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि भेजू हवाला, हवाला भेजू, हवाला भेजू। अरे तो हवाला तो पेश कर दे मेरे घर का किसी का, कि इला समझ के जायज कहा हो। क्या कहा? तुम्हारे घर का हवाला मैं पेश कर दिया। और दूसरी जगह इसी इमदादुल मुश्ताक में, दूसरी जगह सफर नंबर 115 पर तुम्हारा थानवी लिख रहा है कि मैं अपने पीर की म्यानी पकड़कर रोने लगा, तो पीर ने मेरे तशफ़ी दी कि पीर मरता नहीं है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल फरमाता है, और मेरे कब्र से तुम्हें वही फायदा हासिल होगा जो मेरी हालत हयात में होता था। तो मेरे पीर के मरने के बाद में भी मैंने अपनी पीर के कब्र से वही फायदा उठाया जो हालत हयात में उठाता था। थानवी पक्का मुशरिक काफिर हो गया तुम्हारे फतवे से, और कब्र पुजारी हो गया। और तुम्हारी किताब है समाने कासिमी, उसमें तुम्हारा कासिम लानसी लिख रहा है कि वफात याफ्ता रूहों की इमदाद, वफात याफ्ता रूहों से इमदाद के मसले में देवबंद का भी ये मौक़िफ़ है जो आम अहले सुन्नत व जमात का है। जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक की मदद गैरों से कराते हैं, तो अगर किसी अल्लाह के वली से अल्लाह किसी की मदद करा दे तो उसमें क्या बुराई है? वो खुद कहने के जायज है। तुम्हारे जाहिल बात ही नहीं चली जो तुम बात कर रहे हो। तुमने अभी क्या कहा, मुझे मुशरिक कहना और कब्र से मांगने वाला। अबे तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा जाहिल में। अब तू शिर्क की तारीफ कर दे, अब तू शिर्क की तारीफ कर दे। अगर वाकई में तू अपने बाप की औलाद है, शिर्क की तारीफ कर दे, कर शिर्क की तारीफ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप की औलाद हूं, मुझे लेकिन शिर्क की तारीफ कर। ना हरामी तू साबित हो गया। तूने ये कहा था कि अगर वो किताब मेरे घर की निकली तो मैं हरामी होऊंगा, वो मैंने तेरे घर की निकाल दी। तूने तारीफ गया भी तो हुक्म लगा दिया, कुफर का हुक्म लगा दिया कि मैं इसे नहीं मानता किताब को, और ये काफिर है। लगाया रसूलुल्लाह पढ़ने वाला सब पे लगाया हुक्म। मैंने हाँ जो ऐसा अकीदा रखा वो काफिर है। मैंने कहा तो तेरा थानवी रख रहा है, ऐसा अकीदा तेरा थानवी तावील कर रहा है, उसमें मेरे किसी अकाबिर ने उसकी तावील नहीं की, ना किसी अकाबिर ने कहा कि जायज है। मेरे घर का हवाला पेश करना पड़ेगा, तुझे जबानी जमा खर्ची तेरी नहीं मानूंगा, तेरी तो जुबर तलाक मार दूंगा मैं, तेरे मुंह पेशाब कर दूंगा, तेरी बात मान लूंगा मैं। मेरे घर का हवाला पेश कर। अब तू शिर्क की तारीफ कर दे बंदर, बंदर शिर्क की तारीफ कर, शिर्क की तारीफ कर बंदर, शिर्क की तारीफ कर। मदरसे में सिखाई थी गाली तुम्हें? शिर्क की तारीफ कर। तूने कितनी गाली दी मुझे अभी? तू मेरी माँ बहनों को गाली बक रहा है और मैं तेरी सुन रहा हूँ, तो क्या तू मतलब मैं बिल्कुल जबान सीलूंगा अपनी? मैं तुझे गाली नहीं बक रहा हूँ, बल्कि तेरे घर की जो गंद है नहीं वो तुझे सामने तेरे पेश कर रहा हूँ। तू मुझे शिर्क की तारीफ कर, शिर्क की तारीफ कर, शिर्क की तारीफ कर, शिर्क की तारीफ कर, तारीफ कर शिर्क की। तुम तारीफ कर, शारिक स्वयं मैं क्यों करूंगा? मतलब इल्जाम तो लगा रहा, तारीफ मैं करूंगा। वाह जबरदस्त, तुम मांगो, तुम सबको मालूम है, तुम अबे मरगूस शैतान, तूने कब्र से मांगना कहा, तेरे घर साबित कर दिया मैंने, तेरे फजले तेरा थानवी काफिर हो गया अभी। अब तो शिर्क की तारीफ कर। तेरी पूरी ज़ुर्रियत को अभी मैंने शिर्क के घाट नहीं उतारा तेरे घर से, और तू कहेगा तो मैं हवाले के तुझे हवाला दूंगा तेरे घर की किताब का। अगर नहीं दिया मैंने तो अपनी शिकस्त का ऐलान करूंगा। तू शिर्क की तारीफ कर दे बस। शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क की तारीफ तुम्हें नहीं मालूम? शिर्क की तारीफ भाई तू मुझसे शिर्क का फतवा लगा रहा ना, तो तारीफ कर। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाली को तुमने बताया, तुम एक बीच में भाग गए ना, तुम उससे कहे तुम निकाह मानते हो नहीं मानते हो, तो तुमने वो बात तुम्हें मालूम होगा कि तुम यहाँ से किस थारे तुम वहां से भाग के आए। सुनो सुनो सुनो, इमाम अबू हनीफा का क्या मसला है कि अगर दोनों गैर मुस्लिम या दोनों किताबी एक साथ ईमान ले आए तो उनका निकाह बाकी रहेगा। तुम यहाँ से भागे ईमान लाने के बाद, ईमान लाने के बाद, जाहिल ईमान लाने के बाद, जाहिल ईमान लाने के बाद, नुक्ता समझ, ईमान लाने के बाद जाहिल नुक्ते को समझ। हाँ नुक्ता समझ, निकाह कब हुआ था? लिखता नुक्ता समझ,
निकाह नुक्ता के नहीं, नुक्ता बाद होता है, नुक्ता नहीं, नुक्ता होता उसे छोड़, मैं उधर नहीं जा रहा, मैं उसे छोड़, मुझे तू शिरक की तारीफ कर दे। है। नहीं, अरे वहां से क्यों भागता है, तुम भाग के क्यों आए थे? तू भाग का आया है, तूने कभी बिदअती कह रहा है मुझे, कभी कब्र पुजारी कह रहा है, कभी मुशरिक कह रहा है, मैं तेरी सुन लूंगा, तेरी हलक में हाथ डाल के तेरी जबान खींच लूंगा मैं। तारीफ कर शिरक की, गुस्सा, बेचारे को बहुत गुस्सा आ रहा है। शिरक की तारीफ कर, अरे शिरक की तारीफ कर, तेरी हकानियत की दलील है ये, मेरी हकानियत की दलील है, तेरे सीने पर चढ़कर मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और कोई भी तू हवाला नहीं पेश कर रहा हूँ, मैं तेरे घर की किताबें पेश कर रहा हूँ और तू हुक्म लगाता चला जा रहा है। तो मैंने इसलिए कहा था कि तुम ये झूठ बोल रहे हो कि मैंने तू हुक्म, तुम्हारे ग्रुप पे डलवाया हवाला, मैंने तुझे किताब नहीं दी, किताब नहीं दी, मैं तूने कोई हवाला पेश नहीं किया मुझे, मैंने तेरे घर की असल किताबों के हवाले तुझे पेश किया और यही तरीका भी होता है जब किसी से मुनाजरा होता है तो फरीक मुखालिफ के घर की असल किताबों के हवाले पेश किए जाते हैं, ना कि तहरीर। तहरीर जाहिल की औलाद, बेदाल के बुदन, तेरी तहरीर कौन मान लेगा? अरे किसने कहा कि मानो, मैंने कहा मेरी तहरीर मानो तुम, मैंने कहा तो फिर तो मुझे हवाला दे मेरे घर से किसी किताब का जो इल्जाम तो लगा रहा, कोई हवाला पेश किया तूने अभी तक? नहीं किया। सब सुनने मैंने एक किताब का हवाला पढ़ के सुनाया था, एक किताब का। कहाँ पढ़ कर सुनाया तूने? तो तेरी लिखी हुई तहरीर का तो था वो, मैं उसे कैसे मान लूंगा? मेरे घर की ओरिजिनल किताब का स्टैंड पेश कर तू। मैं मेरी लिखी हुई तहरीर का वो नहीं था ना, तेरे लिखी हुई तहरीर नहीं मानूंगा मैं, जैसे मैंने तुझे तेरे घर के हवाले पेश किए किताबों के। मैं कह रहा हूँ मेरी लिखी हुई तहरीर का वो नहीं था, ना मेरी किसी कादिर की तहरीर थी और ना मेरी तहरीर थी। किसकी तहरीर थी फिर वो? अच्छा तू एक बात बता दे मुझे, जाहिल की औलाद, क्या तूने कभी किसी मुनाजरा किया? देखे मुनाजरे? तुम जैसे 36 मेरे पास आए और भाग तो मजबूत शैतान ये तो बता दे, जब किसी पे एतराज किया जाता तो उसे उसके घर की किताब दिखाई जाती नहीं दिखाई जाती? इसी तरीके से इसमें स्कैन पेश किया जाता घर की किताब का उसका। तेरी लिखी कोई नहीं मानेगा तहरीर, तेरी तहरीर कोई नहीं मानेगा, तुझे अहमक और कहेंगे लोग। अहमक जाहिल तू इसी देर से मगरमारी कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि फला किताब में ये लिखा हुआ, फला किताब में ये लिखा हुआ, और तूने ये तक का इल्जाम लगा दिया कि हज़रत फाजिल बरेलवी ने खातमे नबूवत का इनकार किया है। अगर तू वाकई में अपने कौल पर सच्चा है तो हवाला पेश कर। तूने अभी तक कोई हवाला पेश किया मुझे? और मैंने जो भी दावा किया था, मैंने जो भी दावा किया वो तेरे घर की किताब तुझे पेश की। तूने फिर बाद में मुझसे कहा शेख अब्दुल कादिर का वाक़या बयान किया तूने, वो तेरे घर से मैंने पेश कर दिया, तूने इकरार भी कर लिया कि हाँ आगे किताब मेरे पास। क्या झूठ बोला उसने? क्या झूठ बोला? और उसमें और मैंने कहा तुम्हारी 10वीं किताब लिखा, तुम वहाँ भाग गए। क्या झूठ बोला? तो साबित कर तू मेरे घर की किताब में, तेरे घर की किताब तो मैंने सब पेश करी तेरे सामने। लेकिन तुम वही कह रहे हो ना, क्या कहता है कहाँ है किताब? अरे फिर कोई बात करने लगा। अरे आज हल तू ये बता, तूने, मैं मानता हूँ तूने मुनाजिरे नहीं किए, तूने मुनाजिरे देखे तो हैं। जब मुनाजिरे होते हैं तो फरीक के मुखालिफ के घर की किताब पेश की जाती है कि तुम्हारी किताब में ऐसे लिखा हुआ है, ये जबानी मतलब पढ़ा जाता हूँ, जबानी कोई नहीं मानेगा। तेरा जबानी लिखा हुआ, तेरा लिखा हुआ कोई नहीं मानेगा। जैसे मैंने तेरे घर की किताबें पेश की हैं वैसे तू मुझे मेरे घर की ओरिजिनल किताब का स्क्रीन पेश कर कि जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ, जैसे मैंने तुझे पेश कर दी। अब तू मुझे शिरक की तारीफ कर, बंदर शिरक की तारीफ कर, चल भागे मत, शिरक की तारीफ कर, बंदर शिरक की तारीफ कर। शिरक मैं क्यों मानूंगा तेरी? मैंने तेरे घर के हवाले पेश करने के बाद में तेरे कुतुब आलम को कादियानी साबित कर दिया, तेरे घर से कादियानी साबित कर दिया तेरे घर की किताब से, और तेरे ताहिर गयावी को और तेरे मोहम्मद महमूद को, दोनों को तेरे फतवे से काफिर साबित कर दिया। तूने कहा कि मैं इस किताब को नहीं मानता और ऐसा लिखने वाला काफिर है। तुमने अपने उसमें ताहिर गयावी की तस्दीक है, उसमें तकरीर है तेरे ताहिर गयावी की इस किताब में। और शिरक की तारीफ कर, शिरक की तारीफ कर, इसके अंदर हिम्मत नहीं, तुम कह दो ये बात जो मैं तुमसे कहलवा रहा हूँ। शिरक की तारीफ कर। अरे मैं तेरा कोई पाबंद थोड़ी हूँ, तेरी जुबानी कोई बात कहूंगा मैं, मेरे घर से साबित करना पड़ेगा तुझे। तुम्हारे लिए शिरक की भाई, तूने अभी मुझे मुशरिक कहा नहीं, तूने मुझे मुशरिक कहा, तूने मुझे मुशरिक कहा नहीं। अरे तू बैठी बात तो सुन, जो तू मुझ पर तो ये क्या मैंने इल्जाम लगाया था, फिर तौबा कर, से रुजू कर, किससे? जिससे जो तूने मुझे मुशरिक कहा, तौबा रुजू कहिए कर, रुजू कर, मैं मुझसे माफी मांग के मैं माफी मांगता हूँ आपसे, नीर में गलती है मुझसे माफी मांग, जो तूने मुझे मुशरिक कहा। तू मुझे मुसलमान भी मानना है, तू मुझे मुसलमान भी मानना है और तू मुझे मुशरिक भी कह रहा है, तो क्या मुशरिक को सलाम कर सकते हैं? अच्छा बता, ये सब तेरी मन घड़ी बातें कहाँ से आई तेरे पास? तूने मुझे सलाम नहीं किया। किसने? तूने सलाम किया? हाँ, कब किया था? बता, तूने किया नहीं किया? मुझे मुशरिक को सलाम होता? नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने आपको सलाम किया था, कब किया था? नहीं याद है? सामने आप सुन लें, इसने मुझे सलाम भी किया है और मुझे शिरक का फतवा लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो किसी मुशरिक को सलाम करे तो वो खुद मुशरिक है। और इसने अभी मुझे मुसलमान भी माना, तो इसने ये कहा कि अभी के तेरा निकाह होता है, तो इसने मुझे मुसलमान भी मान लिया और मुझसे शिरक का फतवा लगा रहा है। मैं कह रहा हूँ तारीफ कर दे इसकी, तू अगर मुझे शिरक की तारीफ कर दे, देख मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन, एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तुझे इतना बुलवाया है मैंने कि बहुत बुलवा दिया, तुझे बहुत बुलवा दिया मैंने, मेरी एक मिनट बात सुन ले। अगर तूने आज शिरक की तारीफ कर दी,
तूने शिरके की तारीफ कर दी तो तेरे घर से ही मैं तेरे तमाम अकाबिरों को, अगर मैंने शिरके के घाट नहीं उतार दिया तो मेरा नाम ताहिर रजा कादिर नहीं है। तू शिरक की तारीफ कर दे रहा है। अगर तुमने शिर्क की तारीफ की ना, है ना, तुमने अगर शिर्क की तारीफ की तो तुम अकाबिर नहीं, तुम्हारा एक एक बच्चा काफिर। अच्छा, मतलब तोहमत लगाएगा तू और तारीफ करूंगा मैं? नहीं, अगर तुम शिर्क की तारीफ करो तो इसका मतलब ये है कि तू तोहमत लगा रहा है हम पे, तू तोहमत लगा रहा है, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तो तू हमें मुशरिक साबित कर दे। इसका मतलब ये हुआ ना फिर। देखो, वो क्या कहते हैं, शैतान कभी नहीं मान सकता इस बात को कि मुसलमान की बात या फिर अच्छे आदमी की बात अच्छी अरे होती तो है। जाहिल, ये तो बता, तू जुबानी जमा खर्ची करेगा, मैं तेरे घर के हवाले तुझे पेश करूंगा, तेरी बात मैं कैसे मान जाऊंगा? जो तू हम पर इल्जाम लगाया, तूने अभी कब्र से मांगने का इल्जाम लगाया, तूने कब्र से मांगने का इल्जाम लगाया, मैंने तेरे घर से साबित कर दिया, तो मैं तेरी बात के मानूंगा? तेरे तेरे काबिल को दिखाऊंगा मुझे। अब सुन मेरी बात सुन, तूने मुझे अभी कब्र से मांगने वाला कहा, मैंने तेरे घर से साबित कर दिया, तू कहे तो मैं तुझे अभी हवाले भेज देता हूँ। तेरे अशरफ अली थानवी कब्र से मांगने को जायज कह रहा है, तो तेरे फतवे से अशरफ अली थानवी काफिर हुआ नहीं हुआ? अब तू इस तरीके से तूने मुझे मुशरिक कहा, तो अब तू शिरकी की तारीफ कर दे और फिर मैं तुझे तेरे घर का रास्ता दिखाता हूँ। तारीफ कर, शिर्क की तारीफ कर दो। मैंने कहा तुम अगर तुम कर दो तो मैं तुम्हें कर देता हूँ, तुम्हारे एक बच्चे को। मैं उसकी तारीफ करूंगा, ये उसका सबूत दूंगा जो मैं तुझ पर दावा पेश करूंगा। अब सुन, मेरे जिम्मे वो है, चलिए ठीक है, मैं आपकी ये मेरे जिम्मे नहीं है। एक बात आपकी मान, आपकी एक बात मुझसे माफी मांग, माफी मांगा नहीं तो मैंने, अरे किस चीज की ये जो माफी? तूने तोहमत लगाई है, तूने शिरकी की तोहमत लगाई है, तुम्हारा शिर्क तो बद ही है, उसमें माफी मंगवा रहे हैं मुझसे। तो साबित कर क्या है हमारा शिरक। पहले तारीफ कर थी, पहले तारीफ कर और फिर उसके बाद में साबित करना। तुम्हारा शिर्क बद ही है। अरे पहले तारीफ कर और फिर उसके बाद में हमारा शिरक साबित करना। तुम ईमानदारी से बताना कि जो रिजा का नहीं वो हमारा नहीं, अगर तुम मरते मरते ये कलमा पढ़ते मर गए तुम कहाँ जाओगे? इस पर बात करेगा? बोल तो एक मरतबा। चल ले, मैं बोल रहा हूँ, इसमें बोल रहा हूँ, चल शिरक की तारीफ जरूर करूंगा, फिर तारीफ करेगा फिर शिरक की। शिर्क की तारीफ कोई सब जान रहे हैं ना, उसमें कोई बात नहीं। चल ठीक है, अब सुन मेरी बात सुन, आज मेरी बात सुन। क्या तू हर नबी का मानने वाले को मुसलमान मानता? जो नबी को कह देगा मैं नबी को मानता हूँ जी, जो आदमी ये कहे तुझसे कि मैं नबी को मानने वाला हूँ, तू उसे मुसलमान मानता? हाँ, अगर उसके बाकी अकायद ठीक है तो इस शर्त के साथ में, ऐसा थोड़ी है बाकी की बात क्यों कर रहा? बाकी की बात मत कर। जो आदमी ये कह रहा है कि मैं नबी को मानता हूँ, बाकी अकायद की बात मत कर। अकायद के तूने उसके दिल में पढ़ के देख लिया, वो तो जबान से तुझसे कह रहा है कि मैं नबी को मानता हूँ, तू मुसलमान मानता है उसे? अरे भाई, यानी सिर्फ जबान से अगर कोई ये कहे कि मैं तमाम अंबिया को मानता हूँ, मुसलमान है वो? मुसलमान है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। अभी इकरार कराऊंगा, सब इकरार कराऊंगा अभी। शिया भी ये कहते हैं कि हमारे नबी को मानते हैं और हम नबी के मानने वाले हैं। मुसलमान मानता तू? किसको? शियाओं को। मैंने ये कहा है तुमसे, अगर कोई ये कहे कि मैं तमाम, अब इधर मत भागना देवबंदी साहब, आपने अभी मुझसे ये कहा कि जो नबी का नहीं, जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, ये मेरा शिर्क साबित कर रहे हो ना आप। मुझे ये बता दो कि हर नबी को मानने वाला जो ये कहे, दावा करे कि मैं नबी का मानने वाला हूँ, तो मुसलमान मानते हो उसे? सिर्फ इस वजह से तो ये कह रहा है कि भाई मैं तमाम अंबिया को मानता हूँ, तो जरूरी नहीं है वो मुसलमान है नहीं बात ये? तो अब ये बात हुई ये नहीं कि हर आदमी जो ये कहे कि मैं अंबिया को मानता हूँ, उसे मुसलमान नहीं मान सकते? क्या मान सकते हैं? मुसलमान मान सकते हैं उसे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन सामने खुद इकरार कर लिया देवबंदी ने। तो जब हर नबी के मानने वाले को, कहने वाले को मुसलमान नहीं मान सकते, तो तुम मानते हो? अब सुन लो, अब बीच में क्यों बोलते हो यार? बीच में क्यों बोलते हो? 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 तुम ही तो बोल रहे हो। तुम बोलो, अच्छा बोलो, चलो बोलो। अब मैं तुमसे मतलब तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम फिर भी नहीं मानने और तुम इकरार भी कर रहे हो मगर मानते नहीं। तुम यार कितने हद आदमी हो? तुम मुझे बतलाओ। अच्छा सुनो मेरी बात, दोबारा मैं तुमसे सवाल करता हूँ, दोबारा सवाल करता हूँ। अगर कोई आदमी आपसे आकर ये कहे कि मैं नबी को मानने वाला हूँ, क्या सलाम को मानता हूँ, तो वो मुसलमान है? आप भी तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दीजिए, इसमें मैं कर चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं है, आप बताइए। मैंने क्या कहा? दोबारा कहो ना। अभी मैं तुम्हें ये तो समझाना चाह रहा हूँ, तुम जो मतलब बीच में बोल जा रहा हो बार बार। मैं तुम्हें जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, उसका इकरार अभी कराऊंगा। आप बोलो। अच्छा, नबी का जो नबी को मानने वाला कहेगा नबी का मानने वाला हूँ, तमाम सलाम का मानने वाला हूँ, मुसलमान है वो? बता दिया था मैं तो यार, सबने सुन नहीं है ना मुसलमान? नहीं है ना मुसलमान? बिल्कुल है नहीं। जरूरी नहीं, तो हाँ जरूरी नहीं है। तो जो ये कहे कि मैं नबी का मानने वाला हूँ, हर आदमी ऐसा कहने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन जो ये कहे कि मैं रजा का मानने वाला हूँ, तो जिसने रजा को मान लिया नहीं उसने नबी को मान लिया।
समझे नहीं? रजा के मानने ही वाले जो एक नबी ने साथ फरमाया था ना कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, उसी फिरके को उसी जमात को आप कहा जाता है बरेलवी रजा वाले। हम इसलिए कहते हैं कि हम रजा के हैं क्योंकि हर नबी का मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, ये तुमने अभी इकरार किया इस बात को, लेकिन हर रजा का मानने वाला मुसलमान है। वो फिरका है जो कब्र से मांगे पुजारी हो, जो वो अभी मैंने तुम्हारे थानवी को, अगर तुम्हारे अंदर है हो थोड़ी बहुत, अगर गैरत हो तो ये सोचो कि तुम्हारे थानवी को अभी मैंने साबित किया कि तुम्हारे थानवी ने कब्र से मांगा, अपने पीर की कब्र से फायदा उठाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हारे नाम की शर्म नहीं होती यार, कितनी बेहया कौम हो तुम, कितनी बेगैरत कौम हो। अरे तुम्हारे घर से किताबों से साबित किया है और तुम जबानी जमा खर्ची कर रहे हो। तुम्हारे घर की किताब इमदादुल मुश्ताक खुद उल्टा देता हूँ मैं, तुम्हारा रिपीट करता हूँ, अब तुम बदकलामी करने लगोगे, मैं समझता हूँ तुम्हारे अब पास कुछ नहीं है। तुम्हारे घर की किताब इमदादुल मुश्ताक से मैंने साबित कर दिया कि तुम्हारे थानवी ने जो है कब्र से मांगा है और कब्र से मांगने को जायज कहा है। अब तुमने मुझसे हुक्म लगाया शिरक का, अब शिरक भी तुम तारीफ करो मुझे, अब शिरक भी तुम्हारा नहीं रहा क्योंकि तुमने इकरार कर लिया कि हर नबी का मानने वाला, सामने नजात इन्होंने इकरार कर लिया कि हर नबी का मानने वाला जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन मेरा ये अकीदा है कि हर रजा का मानने वाला मुसलमान है। ठीक अब है, इससे क्या वजह हुआ? मैंने तो कहा था आपका अकीदा है। हाँ तो फिर अब मैंने साबित कर दिया, अब तुम मुझे शिरक अब तुम शिरक की तारीफ करो, शिरक की तारीफ करो। नहीं मैं पहले आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुनो पहले तो नहीं देवबंदी साहब बहुत टाइम हो गया, मैं ज्यादा वो करोगे तो मैं फोन काट दूंगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर तुम नहीं लफाजी कर रहे हो, नहीं तो तुम लफाजी कर रहे हो, ऐसे क्या फायदा? कोई तुमसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तुम लफाजी कर रहे हो। शिरक की तारीफ करो, पहले शिरक की तारीफ करो। अरे शिरक की तारीफ से तुम्हारा शिरक वाज़ेह है, मैंने बता दिया भाई। कहाँ वाज़ेह, क्या वाज़ेह किया तुमने? मैंने ये कहा था कि जो रिजा का नहीं वो हमारा नहीं है, जो नारा है ना, मैंने क्या साबित किया अभी? नहीं सुनो, अरे मैं भी तो बोल रहा हूँ वही, जो रजा का है उसी हम अपना मानते हैं, उसी मुसलमान मानते हैं, मैंने साबित कर दिया नहीं? तुमने अभी इकरार किया, अरे तुम अगर जाहिल आदमी हो यार, तुमने अभी इकरार किया कि जो नबी को मानने वाला हो तो उसे मुसलमान नहीं कह सकते, अभी इकरार किया नहीं? और मैंने ये कहा, उसमें ये कहा है कि जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, तो हमारा ये अकीदा है कि जो रजा वाला है वही मुसलमान है, उसी को हम मुसलमान मानते हैं। तो मैं अपना अकीदा साबित कर रहा हूँ ना। तुमने अभी ये इकरार कर लिया कि नबी का मानने वाला जो है, नबी का मानने वाला जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता। है क्यों थूक के चाटते हो यार? कब तक मुझे खाओगे? कब तक थूक के चाटोगे? तुम अपनी जुबान से इकरार भी करते हो और फिर मतलब फिर तोहमत लगाते हो। तुमने अभी इस बात का इकरार किया कि हर नबी का मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, अभी इकरार किया नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि जो रजा का नहीं वो हमारा नहीं, इसका ये मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है तुमने चीज तान के जैसा कि तुम्हारा, तुम रजा के नहीं हो, तुम इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हो, उनकी शान में गुस्ताखी करते हो तुम हमारे नहीं हो, जबकि तुम्हारे अकाबिरों ने मेरे आका आला हज़रत फाजिल बरेलवी को घुटने टेक के मुसलमान माना है और आशिक रसूल माना है, और तुम बदकलामी करते हो। आप उस पर पढ़ो, अहमद रजा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ दो, उस पर तुम रज़ी अल्लाह को कहते हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ दो उस पर, तो रज़ी अल्लाह कहने वाले बुक में लगा के लगेगा। चलो तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो और कह दो रिसा रसूलुल्लाह पढ़ दो तुम। माशाअल्लाह, ये कलमा थानवी ने पढ़वाया, रिसाला इमदाद मैंने तुम्हें भेज दिया। वो झूठ है, मैंने बता दिया उसका। तुम्हारे पास भेज दिया, पढ़ के सुना दो, अगर झूठ है तुम्हारे पास पहुंचा हुआ है, तुम्हारे पास पहुंचा हुआ है, अगर झूठ है तो पढ़ के सुनाओ, तुम्हारे पास पहुंचा हुआ, मैंने भेज दिया, लो मैं खोल लिया मैंने, देखने का काम नहीं चलेगा, पढ़ के सुनाओ, यहाँ रिकॉर्ड होगा ना, तुम पढ़ के सुनाओ, उसमें झूठ क्या है, मेरा झूठ साबित करो। तुमने पढ़ के सुना दिया, काफी है सब सुनने के लिए। तो मान लिया मेरा पढ़ा हुआ, क्या मान लिया मेरा पढ़ा मान लिया? ये नहीं बता रहे तुम, तो तुम जजल मेरा सामने लाओ ना, लोगों के सामने लाओ, आमने सामने मैंने गजल क्या किया? पढ़ के सुनाया उसमें, तुमने ये नहीं पढ़ के सुनाया उसमें, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझसे निकल रहा है, फिर तुम्हें उसमें नहीं बताया। इस पे एतराज नहीं मेरा, कलमे पे एतराज नहीं है मेरा दरूद शरीफ पे एतराज है, जब होश आवाज में है तब पढ़ रहा है। नहीं होश आवाज में नहीं पढ़ रहा है, वो झूठ। पढ़ के सुनाओ, पढ़ो किताब को पढ़ो, तुम ही पढ़ के सुना देना, ठीक है? बाद में लो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अब बात आगे चलो, उस पर हो चुकी है। दूसरी करवट लेकर कलमा शरीफ की गलती की तदारुक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना साहब थानवी। इसको क्या मतलब? फिर मैं ये कहता हूँ, फिर भी ये कहता हूँ, क्या मतलब है? सुन लो नहीं बाद में बोला, पहले पढ़ लेने दो। हालांकि अरे बाद बेवकूफ आदमी पढ़ तो लेने का, बाद कहना कि गजल ये है मेरा, बाद में कहना हालांकि अब बेदार हूँ, क्या कह रहा है? अब बेदार हूँ, ख्वाब नहीं लेकिन बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, जुबान अपने काबू में नहीं। अरे अब सुन तो लो, बड़बड़ किए जाओगे साथ साथ में, जाहिल आदमी तुम्हारे मुंह में बवासीर है क्या है? साथ बोले जा रहे हो, मैं सुन लेता हूँ, तुम साथ बोलते हो, यही पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। तुमने कितनी बदकलामी की मुझसे, तुम सुन नहीं रहे? उस रोज अपने अकादमियों का कुफर छुपाने के लिए बीच में बोलते हो, साथ बोलते हो, कहता कि आवाम न सुने। उस रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा तो दूसरे रोज बेदारी में
दिक्कत रही, खूब रोया, और भी बहुत से वजूहात हैं जो हुजूर के साथ बाई से मोहब्बत हैं, कहाँ तक अर्ज करूं। तो अब ये इसमें जवाब दे रहे हैं, इस वाकये में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बावने ताला मुत्तबे सुन्नत है। तुम क्या अच्छा भाई थानवी से तसल्ली दे रहे हैं ठीक है, कि ठीक। जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो मुत्तबे सुन्नत। अब मुझे बता इसमें दलील क्या किया मैंने, अब वो साबित करो मेरा दलील। अब ठीक, अब आपने कहा, देखो उसने कहा कि दूसरे दिन जिम्मेदारी में भी उसका यही ख्याल था। क्या ख्याल था उसका, बोलो क्या ख्याल क्या था? उसे छोड़ो, जो वो पढ़ा दरूद शरीफ पढ़ा उसका बताओ मैंने दलील क्या किया। अब उसका एक बात ख्याल- बताओ, जो हालत वज्र में होता है, हालत जज्म में होता है, बेवकूफ जाहिल आदमी अजब जाहिल हो, अवाम को धोखा देते हो, क्या वो अपने पिछले हालत बयान कर देगा? उसे मालूम है कि मैंने क्या कह दिया? जो वज्र में होता है, जज्म में होता है, उसे कोई पता नहीं उसने क्या बक दिया था। जैसा मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें होश ही नहीं रहता था क्या बक रहे हैं वो। पता नहीं चलेगा, है ना? हैं? नहीं, हालत जज्म में जब होता है तो उसको कोई पता नहीं, लेकिन ये बयान कर रहा है, तो ये समझ लीजिए हालत जज्म नहीं है, तो शरीफ पढ़ रहा है, तो अब जज्म नहीं है, बयान कर रहा है पूरी कि होश और हवास में हुआ, लेकिन जबान से बेख्तियार निकल रहा है। अशरफ अली नबी अल्लाह। तो अब देखिए इसकी हालत देखिए, अरे बेवकूफ आदमी, अगर जाहिल, हालत जज्म अगर इंसान होगा तो वो अपनी पिछली बात बयान कर देगा, वही करने की बात पूरी बयान कर रहा है। तो ये हालत जज्म कब था? ये मक्कारी है इसकी, बल्कि इसकी अशरफ अली थानवी की शान बढ़ाना चाह रहे थे तुम, मगर ये डूब गया, कुफर के घाट उतर गया इसी गल में से। तुम चाह रहे शान बढ़े इससे। अबे बेवकूफ आदमी, अगर जाहिल, मुझे ये तो बता दो तुम कि जो आदमी हालत जज्म में होता है, तो हालत जज्म में उसने क्या कहा, उसे होश है इस बात का, और ये बात में बयान कर रहा है, तो इसे होश कैसे रहा उसका कि मैंने क्या कहा था? अब सुन रहे हो? हाँ बताओ। अब क्या कहते हैं, अगर मिट गई हो तो सुन लो मेरी भी। इसे थानवी को निकालो, कुफर के घाट से, चलो नहीं सर, सुन लो ना, सुन लो मेरी बात, निकालो इसे, निकालो। वो तो पहले से ही क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो नहीं तुम कयामत तक सुबह का, अरे जहन्नम में जलना नहीं सबके में, तो उसे कब्र में वो उठाएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, इंशाल्लाह तुम्हें मिलेंगे। और तुम्हारे अकाबिर मुर्तजा हसन दरभंगी ने खुद इस बात का इकरार किया है कि मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने उलमाए देवबंद को जैसा समझा, अगर वो उन तक कुफ्र का फतवा ना लगाते तो खुद काफिर हो जाते। ये तुम्हारे घर का फतवा। ये कहा ना, जैसा उन्होंने समझा, वो समझे कहा, हाँ। उनकी समझ कहा, उनकी तो कब्र पर जा जाकर अकल सटिया गई थी। कब्र पर तो तुम्हारा थानवी जा रहा था अपने पीर की नहीं, कब्र से फायदा उठा रहा, पीर के कब्र पर जा रहा फायदा उठा रहा, कब्र पर जा रहा फायदा उठा रहा है। कह रहा जो हालत हाथ में फायदा उठाता कब्र की मरने के बाद में, कब्र से फायदा उठाया मैंने, पक्का कब्र पर जाके तुम्हारा थानवी था। इतना जलील हो गए हो तुम, कितना जलील हो गए बताओ, कितना जलील हो गए देवबंदी हो, कितना जलील हो गए। शिरकी की तारीफ करो और इसे कलमा जो इसने जो दरूद शरीफ पढ़वाया इसकी वजाहत करो। ये थानवी कुफर का हाथ उतर रहा है, इसमें उसे निकालो। सुनी नहीं रहे तो, जब सुनी नहीं रहे तो बोलना पड़ेगा। सुनोगे तो सुनाओ। मैंने ये कहा कि वो कह रहे थे कि मेरा ख्याल ऐसा था, ठीक है, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के ऐसे नहीं, पढ़ के सुना दिया ना, सबने सुन लिया। मैं तो ना ऐसा नहीं, तुम्हारी वजाहत नहीं मानूंगा मैं, ऐसे जो इसमें लिखा हुआ पढ़ के सुनाओ, सब वजाहत करना बाद में, पहले पढ़ के सुनाओ। जो पढ़ के सुनाया तुमने, उस पर तसल्ली नहीं है क्या? ना तसल्ली आवाम को होनी चाहिए ना, तुम्हारी जबान से तो पढ़ना चाहिए। तुम ये कह रहे हो बार बार कि तुम दलील कर रहे हो, तुम अपनी जबान से पढ़ के सुनाओ। तो तुमने वो पढ़ के सुना दिया काफी आवाम के लिए। तुम्हारी जबान से, तुम्हारे अकाबिर का है ना, तुम जिसे मुजद्दिद मानते हो, जो कहता है अपने आप को मैं जाहिल नहीं बल्कि अजहल हूँ, उसको पढ़ के तुम भी तो सुनाओ जरा मुझे। बताओ, एक आदमी अगर अपनी जबान से जाहिल और अजहल कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ है नहीं, और एक अपने आप को रजी अल्लाह अन्हु लिखवा रहा है और अपने आप को मुजद्दिद कह रहा है, जबकि मुजद्दिदुल चादर है, मुजद्दिदुल कब्र है, मुजद्दिदुल मज़ार है, वो है बड़ा आदमी। तुम्हारे अकाबिरों ने मुजद्दिद माना, लिखाऊं, लगाओ हुक्म तुम्हारे, और जो रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखे उसको हुक्म लगाओ, चलेगा। तुम्हारे अकाबिरों ने लिखा, तुम्हारे अकाबिरों ने आला हज़रत भी लिखा, अपने अकाबिरों को हुक्म लगाओ हुक्म। मेरे आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने खुद ने कहा कि मैं मुजद्दिद हूं, बल्कि तमाम आलम के बड़े बड़े उलमा इकराम जो दौर के थे, उन्होंने सबने माना कि आज के दौर के तमाम उलमा इकराम में तुम सबसे आला हो, आला हज़रत। ठीक है, ओ सुनो, चल मैं भी मानता हूं मुजद्दिद, लेकिन ये किसी ने कहा है कि दीन पे मुजद्दिद, मैं कह रहा हूं मुजद्दिदुल कब्र, मुजद्दिदुल मज़ार, मुजद्दिदुल रिदा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि थानवी की बात मानो तुम। थानवी की नहीं मानते हो, थानवी की नहीं मानते, थानवी मुजद्दिद मानना है, थानवी मुजद्दिद मानना है। देव वाला, हाँ चलो देव है, पढ़ के सुनाओ, मुजद्दिद दीन माना हो। ना पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ये बताओ क्या मानोगे, फिर थानवी को काफिर मानोगे? नहीं, अरे मैंने कहा कि जो मैं खुद मुजद्दिद मानता, मैंने कहा कि जो मुजद्दिद माने वो काफिर है। और फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? जब मुजद्दिद मानना, देखिए सामने इन्होंने मुजद्दिद मान लिया, इनके थानवी ने मुजद्दिद मान लिया, इनके कई अकाबिरों ने मुजद्दिद माना है, कई अकाबिरों ने, और मुसलमान माना है, और आशिक़ रसूल माना है। खबर का हवाला मैंने तुम्हें दे दिया, अगर तुम्हें गैरत हो ना। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी इंसान है,
सब इंसानों में किसी भी मतलब मजहब के मानने वाले हैं, सबसे बड़ी बेगैरत कौम जो है ना वो देवबंदी है। अरे बेवकूफ अजब जाहिल, कब्र का इल्जाम मुझ पे लगा रहा है, तेरे घर की किताब का मैंने हवाला दिया, तेरा थानवी कब्र से अपने पीर की सादा उठा रहा है, तेरी समझ में नहीं आ रही। तू अगर मेरे सामने हो ना तो तेरे मुंह पे वो जूते लगाऊं मैं, वो जूते लगाऊं मैं तेरे मुंह पे, तो तेरा मुंह सीधा हो जाएगा। तू अजब जाहिल लग रहा है मुझे, फिर भी इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पे, तेरे घर से मैं हवाले दे रहा हूँ फिर भी मुझसे इल्जाम लगाया जा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा शिर्क साबित कर, वो तू नहीं कर पा रहा। तूने कलमे का लगाया, कलमे मैं तेरे घर से पेश कर रहा हूँ कि दरूद शरीफ पढ़वा रहा तेरा थानवी, उसका तू जवाब नहीं दे पा रहा, और खाली जबानी जमा खर्ची किया जा रहा मजदूर शैतान, और कुछ मिला रहा है। चल मजदूर शैतान आया वहाँ से, जाहिल आदमी, जाहिल है, चल तू चल, अदब जाहिल है तू, जाहिल आया वहाँ से, कोई है तेरे पास कुछ नहीं आया, जाहिल ऐसी मजदूर शैतान आ गया बर्बाद करने के लिए, गली और उसमें होने के लिए आया। तो बेगैर तो तुम्हें गैरत का पता नहीं कितने दिली उसको होगा, तुम किसी अकाबिर को निकाले, तेरे चादर जायज लिखने वाले का क्या हुक्म लगा, लगा चल हुक्म तेरे अंदर का दम है तो भड़ुए, मतलब एतराज किया जा रहा है, हुक्म लगाने तैयार नहीं है। तेरे अकाबिरों चादर चढ़ाना भी जायज लिखा है, तेरे थानवी ने चादर चढ़ाना फूल चढ़ाना भी जायज लिखा है, तेरी किताब से साबित करूंगा मैं, ये भी साबित करूंगा। जाहिल आ गया, चल जाहिल आया, मतलब बेवकूफ आदमी का इनका पता नहीं, ये नाम की कोई चीज नहीं, आगा मगजमारी करने के लिए और सब कर दिया मजदूर शैतान ने, दज्जाल अजल का मानने वाला अजल, बेवकूफ जाहिल आदमी। अभी इसकी औलाद को देखो, इनमें एक पैसे का नहीं, भाड़ू पे आगे दिमाग खराब करने के लिए इल्जाम लगाया जा रहा, घर से साबित कर रहा हूँ माना चौथ को, फिर मतलब इल्जाम लगा रहा, साला जाहिल, साले कब्र पुजारी कहा जा रहा है, कब्र पुजारी तेरा थानवी का, थानवी को साबित कर रहा हूँ तेरे घर से, फिर भी नहीं मानना। अरे अजब बेगैरत कौम हो तुम, कितनी बड़ी बेगैरत कौम हो तुम, अबे कितनी बड़ी बेगैरत कौम हो तुम, गैरत का पता नहीं है। भड़ुए तेरे थानवी को कब्र पुजारी साबित कर दिया, फिर भी बोले जा रहा, पहले अपने थानवी को कुछ नहीं कह रहा, थानवी तेरा तेरे अपने पीर की खबर से फायदा उठा रहा है और उससे बदला मांग रहा है कि 10वीं फरमाइए। मरदूद शैतान कच्चाब आदम दज्जाल, पहले कभी तो आ जाते हो मतलब मुसलमानों को लड़ने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए, जाहिल, चल कभी इसकी औलाद आया।